Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. We are discussing next topic from geography, that is climate. And from this, today we'll be discussing Indian monsoon. भारत के अंदर मौसम या मानसून किस तरह का होता है. The Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. भारत का मौसम मानसून विंड से प्रभावित है. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. भारत में सबसे पहली बार जो सेलर्स आए थे, नाविक आए थे, उन्होंने इस चीज को महसूस किया था. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of the winds. हवाओं की बदलती हुई दिशा की वजह से उन्हें फायदा हुआ था और इसी वजह से उन्होंने इस चीज को पहली बार महसूस किया था. The Arabs, who had also come to India as traders, named the seasonal reversal of the wind system monsoon. अरब जो भारत के अंदर व्यापार करने आए थे, उन्होंने इन हवाओं को मानसून का नाम दिया. The monsoons are experienced in tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. भारत के अंदर जो ट्रॉपिकल एरिया है उसमें ये मौसम 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के अंदर महसूस किया जाता है. To understand the mechanism of monsoon, the following facts are important. ये मानसून किस तरह से चलता है या कैसे होता है, इसके लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. The differential heating and cooling of land and water creates low pressure on landmass of India while the seas around experience comparatively high pressure. पानी और जमीन का अलग अलग समय पर गर्म और ठंडा होना मानसून को प्रभावित करता है. The shift of position of intertropical convergence zone in summer over the Ganga plain. This is the equatorial trough normally positioned about 5 degrees north of the equator. It is also known as monsoon trough during the monsoon seasons. गर्मी के दिनों में गंगा प्लेन के ऊपर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का आ जाना. नाउ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है? The intertropical convergence zone is a broad trough of low pressure in equatorial latitude. This is where the northeast and the southeast trade winds converge. ये वो हिस्सा है जहां पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड्स कन्वर्ज होती हैं. The convergence zone lies more or less parallel to equator but moves north or south with the apparent movement of the sun. ये इक्वेटर के आसपास है और सूरज की दिशा के साथ में बदलते रहते हैं. कन्वर्ज मतलब मिलना, डाइवर्ज परिवर्तित होना, कन्वर्ज मिलना. Now the third point is the presence of high pressure area east of Madagascar approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. Indian Ocean के ऊपर high pressure area का मौजूद होना. The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. इसकी वजह से भारत का मानसून प्रभावित होता है. The Tibetan Plateau gets intensively heated during summer, which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 km above sea level. Tibetan Plateau गर्मी के अंदर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है और हवाओं की दिशा बदल जाती है. And the fifth point is the movement of westerly jet streams to north of the Himalayas and presence of tropical easterly jet streams over the Indian peninsula during summer. Westerly jet streams और tropically easterly jet stream की वजह से इंडियन मानसून में परिवर्तन आता है, इंडियन मानसून प्रभावित होता है. Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoon. इसके अलावा जो सदर्न ओशंस हैं उनके ऊपर जो दबाव का कारण है उसकी वजह से भी मानसून प्रभावित होता है. Normally when the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experiences low pressure. एक तरफ जहां पर हाई प्रेशर होता है तो दूसरी तरफ वहीं लो प्रेशर डेवलप हो जाता है. But in certain years there is a reversal in the pressure conditions and the eastern Pacific has low pressure in comparison to eastern Indian Ocean. परिवर्तन की वजह से ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर होता है और ये ईस्टर्न इंडियन ओशन के ऑपोजिट होता है.
दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज सर्दर्न ऑसिलेशन। तकरीबन 30 साल के पीरियड के अंदर जो ये हवाओं का परिवर्तन होता है इसे सर्दर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, पैसिफिक ओशन 18 डिग्री साउथ 149 डिग्री वेस्ट एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन 12 डिग्रीज 30 मिनट्स साउथ oblique 131 degree east is computed to predict the intensity of the monsoon. If pressure differences were negative, it would mean below average and low late monsoon. यदि प्रेशर के अंदर जो अंतर है वो माइनस में जाता है तो मानसून कम या लेट आता है। A feature connected with southern oscillation is El Nino phenomena, in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of cold Peruvian coast every 2 to 5 years. El Nino होता है, उसमें warm ocean currents पेरुवियन कोस्ट पर चलती हैं और ये तकरीबन 2 से 5 साल के अंतर में होता है। The changes in pressure conditions are connected to El Nino, hence the phenomena is referred to as ENSO, El Nino Southern Oscillation। इसे El Nino का नाम से जाना जाता है। The onset of monsoon and withdrawal. Now, this will take in general form. Onset and withdrawal मतलब मौसम का आना और वापस से लौटना। जनरली मार्च अप्रैल के महीने में सर्दी के बाद में हल्की सी गर्मी स्टार्ट हो जाती है और उस दौरान मौसम में परिवर्तन आना शुरू होता है। कभी कभी अचानक से कुछ इलाकों में तेजी से बारिश होनी शुरू हो जाती है। उस तेजी से बारिश आने के समय को बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहा जाता है, जब अचानक से बादल से बारिश गिरना शुरू हो जाती है। और इंडिया के अंदर जून से लेकर मिड सितंबर के महीने तक 100 से 120 दिन के अंतर में बारिश का मौसम रहता है, जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर बारिश आती रहती है। इस मॉनसून के सीजन को इंडिया में अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच के नाम से भी जाना जाता है। अरेबियन सी ब्रांच मुंबई में 10 डेज अप्रॉक्सीमेटली लेटर आती है और 10 जून के आसपास बॉम्बे में बारिश होना शुरू हो जाती है। एंड बे ऑफ बंगाल एडवांसेस रैपिडली और आसाम में फर्स्ट वीक ऑफ जून में वो बारिश लेकर आ जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये मौसम गंगा प्लेन तक पहुंच जाता है। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र कच्छ, और जून के मध्य आते आते अरेबियन सी ब्रांच की वजह से सौराष्ट्र कच्छ वाले इलाके के अंदर बारिश होनी शुरू हो जाती है। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ मॉनसून मर्ज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। दिल्ली में भी 29 जून के आसपास दिल्ली के वाले इलाकों में बारिश आ जाती है और धीरे धीरे जुलाई आते आते फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आते आते वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान और बाकी के इलाकों में बारिश आ चुकी होती है और मिड जुलाई आते आते हिमाचल प्रदेश और बाकी भारत में बारिश आ जाती है। इसके अलावा अब अलग अलग समय पर बारिश की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ऐसे ही अलग अलग समय पर भारत से वापस से बारिश के लौटने का समय भी हो जाता है। अर्ली सितंबर के आते ही नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से तकरीबन बारिश जाना शुरू हो जाती है और मिड अक्टूबर आते आते धीरे धीरे से बारिश बंद हो जाती है। विड्रॉल फ्रॉम सर्दर्न हाफ ऑफ पेनिसुला इज फेयरली रैपिड और दिसंबर का मंथ आते आते पूरे भारत से बारिश जा चुकी होती है। तो इस ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून में हमने ये देखा कि जो बारिश जून के महीने में शुरू होती है, अलग अलग भारत के हिस्सों में अलग अलग समय पर बारिश आती है, उसी तरह से दिसंबर एंड आते आते पूरे भारत से बारिश जा चुकी थी। That's all for today. I hope you have understood this. The next topic seasons we'll discuss in the next video.